સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. તાપી તટ પર ઊભું છે આ શિક્ષણનું ઉપવન, એકવાર આવો તો મહેકે આખું આજીવન. તાપી તટ પર ઊભું છે આ શિક્ષણનું ઉપવન, એકવાર આવો તો મહેકે આખું આજીવન. જીવનના આનંદથી અહીંયા કોઈ નથી પરહેજ, જીવનના આનંદથી અહીંયા કોઈ નથી પરહેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. એક તરફ કુરુક્ષેત્ર ને કર્ણભૂમિ એક બાજુ, બંને વચ્ચે જ્ઞાનનું ફૂલ ખીલે છે તાજું. એક તરફ કુરુક્ષેત્ર ને કર્ણભૂમિ એક બાજુ, બંને વચ્ચે જ્ઞાનનું ફૂલ ખીલે છે તાજું. સૌને હૈયે સ્થાન છે એનું હંમેશા રહેશે જ, સૌને હૈયે સ્થાન છે એનું હંમેશા રહેશે જ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. મોકળાશ અજવાસ છલકતા વર્ગ અહીં છે, શિક્ષણને સંસ્કાર ભર્યું એક સ્વર્ગ અહીં છે. મોકળાશ અજવાસ છલકતા વર્ગ અહીં છે, શિક્ષણને સંસ્કાર ભર્યું એક સ્વર્ગ અહીં છે. શિસ્ત અને સમજણની જોડી અહીં વર્ષોથી છે જ, શિસ્ત અને સમજણની જોડી અહીં વર્ષોથી છે જ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમરોલી કોલેજ, અમરોલી કોલેજ. અમરોલી કોલેજ કેળવણી મંડળના ટ્રસ્ટી શ્રી અને તે મારા સ્નેહી શ્રી પ્રિન્સિપાલ ડૉક્ટર કે.એન. ચાવડા સાહેબનો આભાર માનું છું કે જેમણે મને આ પ્રસંગે આ લોકોનો જાગૃતિ અભિયાન કરવાનો જે મોકો આપ્યો છે એ માટે આપ સૌનો આભાર. તેમજ એમની સાથેની આ ટીમ જે વેબિનાર કરી રહેલી છે, ડૉક્ટર મેહુલભાઈ શાહ તેમજ બ્રિજેશભાઈ અને અન્ય, અને મારો જે પરિચય ટૂંકમાં સારી રીતે આપ્યો એ સર્વેને પ્રણામ. હવે આપણે શરૂ કરીએ કે કોરોના વાયરસ શું છે. કોરોના વાયરસ વિશે તમે અત્યાર સુધીમાં પેપરોમાં ઘણું બધું વાંચી ચૂક્યા હશો, તેમજ સોશિયલ મીડિયામાં બધું ઘણું બધું આવી ચૂક્યું છે, એટલે મારા કરતાં તમે વધુ જાણતા હશો. પણ આપણે જ્યારે સોશિયલ મીડિયામાં જે બધી માહિતીઓ મળે છે આપણને, તો એ બધી માહિતીઓમાં ઘણી વખત એટલી બધી માહિતીઓનો ભરપૂર આવતી હોય છે કે જેનાથી આપણને ઘણીવાર એવું થઈ શકે કે ભાઈ આ માહિતી પૂરેપૂરી સાચી છે કે પૂરેપૂરી નથી. એટલે આની સાથે જે પરિવારજનો અને જે લોકો જોડાયા છે એ લોકોને જે કંઈ બી પ્રશ્નો હોય તે બ્રિજેશભાઈએ જણાવ્યું
એ પ્રમાણે આપણે પ્રશ્નોત્તરી પ્રમાણે જ જઈશું, પણ અમુક પ્રશ્નો હું જ પૂછીશ. જેમ કે કોરોના વાયરસ શું છે, એમ કે કોરોના વાયરસ લગભગ 70 પ્રકારના, વધારે પ્રકારના કોરોના વાયરસ અત્યારે છે. એમાં એના બેઝિકલી 2 ગ્રુપ હોય છે, એ અને ગ્રુપ અને બી ગ્રુપ, અને તેની અંદર આલ્ફા બીટા નામની કેટેગરી હોય છે. હવે જે આપણને COVID-19 છે એ આ બીટા કેટેગરીનો વાયરસ છે. એટલે ઘણીવાર જે આપણને લખે છે, હવે આ ધારો કે આ અગાઉ બી આપને ખ્યાલ હશે કે જો ના હોય તો 2006, 2012, 2015 અને 2019માં આ રોગ થઈ જ રહેલો છે. 2006માં જે આપણે સાસ તરીકે ઓળખતા હતા, સિવિયર એક્યુટ રેસ્પિરેટરી સિન્ડ્રોમ તરીકે થયેલો. 2012માં બી ચાઇનામાં જ્યાં રોગ થયેલો હતો એને આપણે સાસ તરીકે ઓળખતા હતા. 2015માં મિડલ ઇસ્ટમાં થયો એટલે આપણે એને મિડલ ઇસ્ટ રેસ્પિરેટરી સિન્ડ્રોમ કીધું. અને પછી હાલમાં જે 2019માં વુહાન ખાતે આ ચાઇનામાં જ આ વાયરસ થયો એને આપણે નોવેલ કોરોના 2 વાયરસ કહીએ. આ વાયરસમાં એવું હોય છે કે સમયાંતરે એમાં અમુક પ્રકારનું રૂપાંતર થતું હોય છે. એમાં જે જૈવિક રૂપાંતરક જે આપણે કહીએ, જેને મ્યુટેશન આપણે કહીએ છીએ અમારી ભાષામાં, એ મ્યુટેટ થયા કરે દર વખતે, અને મ્યુટેશનને આધારે એ પોતાની કેરેક્ટરિસ્ટિક બદલતો રહે છે, જેના લીધે દર વખતે એ નવા સાઇન સિમ્ટમ્સ સાથે પ્રદર્શિત થતો હોય છે. એમ આમ કોરોના આપણે જ્યાં COVID-19 છે એ COVID-19નો સૌપ્રથમ કેસ આપણા ગુજરાતમાં માર્ચ મહિનામાં ડિટેક્ટ થયો હતો. અને આ રોગ સામાન્યપણે આપણને એવી રીતે જણાવી દઈએ કે આ જે રોગ અત્યારે હાલમાં પ્રવર્તે છે એમાંના મોટા, એટલે આપણે સતર્કતા રાખવાની જરૂર છે અને એ બાબતે ગંભીર થવાની જરૂર છે. એનું કારણ એ છે કે 85% લોકોમાં જે આપણે જોઈએ છે એ માઇલ્ડ અથવા એસિમ્પ્ટોમેટિક વેરાયટી હોય છે, જ્યારે એમાંથી 10 થી 15% એવા હોય છે જે મોડરેટ ટુ સિવિયર કેટેગરીના હોય છે, કે જે લોકોને હોસ્પિટલાઇઝેશનની જરૂર પડે છે. એટલે આપણે આનાથી ભયભીત થવાની જરૂર નથી, ડરવાની જરૂર નથી, પણ સાવચેતી રાખવાની ખાસ અને સતર્કતા રાખવાની જરૂર છે. એ આપણે જોઈશું કે જે આ રોગ હાલમાં અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે શરૂઆતમાં આ રોગ આપણે સ્ટેજ 1 પર હતો. સ્ટેજ 1 એટલે કે જે લોકોએ આ રોગ જે વિસ્તારમાં થતો હતો એ વિસ્તારની છેલ્લા 14 દિવસમાં મુલાકાત લીધી હોય તેવા લોકોને આ રોગનું આપણને જોવા મળતો હતો. પણ અને એ જે લોકોને આ રોગ જોવા મળતો હતો એના ક્લોઝ કોન્ટેક્ટમાં જેટલા વ્યક્તિઓ આવતા હતા, કન્ફર્મ કેસ કહીએ આપણે, કન્ફર્મ કેસની સાથે જેટલા બી લોકો આની સાથે આવતા હતા એમાં આ રોગ આપણને જોવા મળતો હતો. પણ હવેની પરિસ્થિતિ એવી થઈ છે કે અત્યારે લગભગ દુનિયાના 700 દેશોમાં આ રોગ એક ભરડો લઈ ચૂક્યું છે. એટલે આપણે આની સાવચેતી અને એ જ ખાસ કરવાની જરૂર છે. આપણે જે લોકડાઉન 1 કર્યું, લોકડાઉન 2 કર્યું, લોકડાઉનની પ્રક્રિયા એટલા માટે કરવામાં આવેલી હતી કે જ્યારે આપણે આપણી હોસ્પિટલોને તૈયાર કરવાની, અને એ જે પરિસ્થિતિ હતી એ સરકારે સારી રીતે એની જવાબદારીઓ નિભાવી છે. તો હવે આપણે સમાજના લોકોએ અને આપણે પોતાએ આપણી જવાબદારી સમજીને આપણે આ રોગનું વધુ ફેલાવો ન થાય તેના માટેના પગલાઓ લેવા જરૂરી છે. એટલે આ જે કોરોના વાયરસ છે હવે આ રીતે છે. હવે આપણે બેઝિકલી આ શું કરે છે, આ કોરોના વાયરસ છે એ આપણા ઇમ્યુન પાવર જે કહેવાય, ઇમ્યુનિટી, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ, એની પર ઇફેક્ટ કરે છે. આપણા શરીરમાં ટી સેલ આવેલા છે, એ ટી સેલ પર એ એક્ટિવિટી કરે છે. આપણા શરીરનું મૂળભૂત જે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ છે એ ટી સેલના લીધે હોય છે. એ ટી સેલ એટલે એને આપણે જે કહીએ તો CD4 અને CD8 કાઉન્ટ એ લોકો ઇફેક્ટ કરે. એટલે જ્યારે કોઈ પણ રોગ કે કોઈ પણ બેક્ટેરિયા, કોઈ પણ વાયરસ જ્યારે આપણા શરીરમાં આવે ત્યારે આપણા શરીરમાં જ એને સામે લડવાની શક્તિ હોય છે. હવે એ જે શક્તિ હોય છે એ શક્તિ આપણા મેક્રોફેજ કરે છે, અને એ મેક્રોફેજ એક્ટિવેશન સિન્ડ્રોમ કહેવાય, માસ કહેવાય. અને એમાં આ ટી લિમ્ફોસાઇટનો સી ફાળો હોય છે કે જે આપણને, એટલે તમે દરેક વખતે વાંચતા હશો કે જેની ઇમ્યુનિટી સારી છે, જે લોકોની ઇમ્યુનિટી સારી છે એ લોકોને આ રોગ ઓછો જોવા મળે છે. અને જો થાય છે તે માઇલ્ડ અથવા એસિમ્પ્ટોમેટિક કેસ હોય છે. હવે એસિમ્પ્ટોમેટિક કેસ કોને કહીએ? યુઝ્યુઅલી આ જે પ્રકારના દર્દીઓ હોય છે એ દર્દીઓને તમે જુઓ તો સામાન્ય
એ મેઇનલી જે રેસ્પિરેટરી સિમ્ટમના એફેક્શન થતું હોવાથી એમાં મેઇનલી તમને જે આપણે કહીએ ઉધરસ આવી, ગળામાં ખરાશ થવી, તાવ આવવો, શરીરનો દુખાવો થવો, અમુક લોકોને ઝાડા થવા, પેટનો દુખાવો થવો, આવા સિમ્ટમ્સ જણાય છે. પણ હવે એવું બી જાણવા મળેલું છે કે આપણે જે રીતે આવા કેસો આવે છે એમાંથી ઘણાને ટેસ્ટ સેન્સેશન જતો રહે છે, કોઈને સૂંઘવાની શક્તિમાં બી થોડું ઉણપ આવેલી હોય છે. એટલે આ રીતના જે છે, હવે આને જે રોગ છે અત્યારે જે ચોમાસું ચાલે છે એ ચોમાસામાં બીજા બધા વાયરલ ડિસીઝ બી કોમન હોય છે, જેને આપણે ઇન્ફ્લુએન્ઝા કહીએ છીએ. એને ઇન્ફ્લુએન્ઝા લાઇક ઇલનેસીસ ઇઝ ઓલ્સો કોમન ઇન ધીસ મોન્સૂન સિઝન. એટલે આપણે એને કેવી રીતે જુદો પાડી શકીએ કે આ સામાન્ય ફ્લૂ છે કે કોવિડ છે? હવે સામાન્ય ફ્લૂ હોય, શરદી ખાંસી જે આપણે કહીએ છીએ, એ શરદી ખાંસીમાં તમે જુઓ તો એમાં જે નાક ભરાઈ જાય, એમાંથી નાકમાંથી જે આપણે જે જાડું પ્રવાહી નીકળે એ જે જોવા મળે છે એ કોમન ફ્લૂ, એ સામાન્ય શરદી છે, જેવું આપણને કોવિડ કેસમાં મળતું નથી. એટલે જે કેસો કે જેમાં આ બધા હોય એમાં બી તમને શરીર દુખાવો, તાવ આવવો, પણ તાવ જે આવે છે તાવનું પ્રમાણ એટલું બધું હોતું નથી જે આપણને કોવિડ કેસમાં જોવા મળે છે. એ જો 101 અથવા 102 થી વધારે પ્રમાણમાં જો તાવ હોય તો એના માટે ચોક્કસ આપણે સતર્કતા રાખી અને એની ટ્રીટમેન્ટ લેવી જરૂરી છે. કેમ કે આમાં ટ્રીટમેન્ટ શરૂઆતથી જ લેવાથી ઘણો બધો ફેર પડી શકે છે. કેમ કે પહેલું અઠવાડિયું જે આમાં આપણે જે રોગ આપણા શરીરમાં વાયરસ આવે અને એ વાયરેમિયા કરે, એ આપણા શરીરમાં ફેલાય, દરેક ઓર્ગન અને દરેક આખી સિસ્ટમમાં એ ફેલાય, એની સાથે એ જે પરિસ્થિતિ ઊભી કરે છે એ દરમિયાન જ તમને તાવ આવવો, શરીર દુખવું, ગળામાં ખરાશ થવી, જે ઝાડા થવા, પેટનો દુખાવો થવો, આ સામાન્ય પ્રકારના લક્ષણો આપણને જોવા મળે છે. એ પહેલા અઠવાડિયામાં જોવા મળે છે. એટલે જ્યારે શરૂઆતમાં આપણને ઇન્ફેક્શન લાગે અને પહેલું સિમ્ટમ આવે એ વખતનો જે પીરિયડ છે એને આપણે ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ તરીકે ઓળખતા હોય છે. આ ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ સામાન્ય તરીકે 1 થી 5 દિવસનો હોય છે. અને એ 5 દિવસમાં આપણે એ વખતે પહેલા 10 કે 14 દિવસમાં તમે આ જો બીજાના સંસર્ગમાં આવો તો તમે બીજા લોકોને બી આનાથી સંક્રમિત કરી શકો છો. એટલે આપણે જોઈએ છે કે દરેક જગ્યાએ એવું કહે છે કે જેને બી સામાન્ય તાવ હોય, શરદી હોય, ખાંસી હોય તેવા લોકોએ, અથવા જે થોડી ઘણી બી બીમારી હોય તેવા લોકોએ ઘરમાં રહેવું, જરૂર વગર બહાર નીકળવું નહીં. અને બહાર નીકળો તો ખાસ માસ્ક પહેરીને નીકળો. અને જ્યાં સુધી આપણી જિંદગીથી કશું જ અગત્યનું હોતું નથી, એટલે જો કોઈ એવું અગત્યનું જ કામ હોય તો જ બહાર જવાનું ટાળો, તો જ બહાર જાઓ, બાકી બહાર જવાનું ટાળો. આ એક આનું મુખ્ય એ છે કે જેનાથી તમે બીજાને સંક્રમિત ન કરી શકો. અને ઘરે જ રહો, અને ઘરે બી એક અલાયદા રૂમમાં રહો કે જ્યાંથી તમે ઘરના બીજા સભ્યોને બી તમે સંક્રમિત ન કરી શકો. એટલે જ્યાં સુધી જરૂર ન હોય ત્યાં સુધી બહાર જવાનું ટાળો. અને ખાસ કરીને જો બહાર જવાનું કોક વાર થાય તો ભીડભાડવાળી જગ્યાઓ, મોલ છે, થિયેટર છે કે ગાર્ડન છે કે જ્યાં લોકો વધારે હોય એવા એરિયામાં જવાનું ટાળો. ખાસ એ જગ્યાએ જે બેંકો છે કે જ્યાં ગીર્દી બી તમને થોડીક બી જોવા મળે એવા વિસ્તારમાં જવાનું ટાળવાનું જરૂરી છે. કેમ કે આ એક જ છે કે આ રોગ હવે હાલની પરિસ્થિતિ એવી થઈ ગઈ છે કે માણસ શરૂઆતના તબક્કામાં એવું હતું કે આ રોગ ખાલી ડ્રોપલેટ ઇન્ફેક્શન છે, કે તમે ખાંસી ખાઓ, કંઈ બી કરો તો જે હવામાં એનાથી જે ડ્રોપલેટ્સ બહાર નીકળે છે ને ફોમાઇટ્સ કહેવાય. એ ફોમાઇટ્સ તમે તમારા 3 થી 4 ફૂટના અંતરમાં એ ફોમાઇટ સેટલ થાય અને તે બધી જે આપણે જે સરફેસ કહેવાય કે તમે જ્યાં ખાંસી ખાધી હોય કે કંઈ બી કર્યું હોય તો એના જે ફોમાઇટ્સ નીકળે, એ ફોમાઇટ તમારી કોઈ બી સરફેસ પર ચોંટી જાય અને એ સરફેસની સંસર્ગમાં તમે આવો તો તમને આ રોગ થઈ શકે છે. પણ હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે હવે એરબોર્ન ડિસીઝ હતો, હવે મનુષ્યથી મનુષ્યમાં બી ફેલાય છે. એટલા માટે આપણે ફિઝિકલ ડિસ્ટન્સની વાત કહી. આપણે બધા જે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ છે એ સોશિયલ ડિસ્ટન્સની જગ્યાએ સારો શબ્દ છે ફિઝિકલ ડિસ્ટન્સ. એટલે એકબીજાથી 3 થી 5 ફૂટનું અંતર રાખીને વાત કરવી. આપણે જે એકબીજાને જે કહીએ છીએ કે ભાઈ
આપણે જ્યારે બી મળીએ ત્યારે એકબીજાનું ગ્રીટિંગ કરીએ છીએ. એ ગ્રીટિંગ બી આપણી હિન્દુ રીતે એકબીજાને નમસ્તે કરીને કહીએ, એકબીજાથી હાથ મળવાનું કે હાથ મિલાવવાનો કે ભેટવાનું ન રાખીએ, કે જેથી આ બધાથી એકબીજાને સંસર્ગમાં તમે આવો તો તમે 3 ફૂટથી ઓછું અંતર હોય તો, અને એ તમે 10 મિનિટથી વધારે જો અંતર 10 મિનિટથી વધારે કોઈની જોડે વાત કરવાની હોય ત્યારે તમે હંમેશા ધ્યાન રાખો કે 3 થી 5 ફૂટનું અંતર છે રાખવું. કેમ કે જે બી એસિમ્પ્ટોમેટિક કેસ છે એ જો આવી રીતે તમારી સાથે સંસર્ગમાં આવે 10 મિનિટથી વધારે તો તમને શક્યતાઓ રહેલી હોય છે સંક્રમિત થવાની. એટલે આ ખાસ ધ્યાન રાખવું કે જ્યારે બી કંઈ બી જાઓ ત્યારે એટલીસ્ટ તમારે 3 થી 5 ફૂટનું અંતર રાખી શકવું એ હિતાવો છે. માસ્ક પહેરવો એ બી હવે સરકારે બી એ નિયમ બનાવી દીધેલો છે કે તમે જ્યારે બી કંઈ જાઓ તો માસ્ક પહેરવો એ છે. એટલે આ જે બધી વસ્તુ થઈ એ, અને સાથે સાથે આપણે જ્યારે બહારની કોઈ બી વસ્તુ લઈએ તો હેન્ડ વોશિંગ એ એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. હેન્ડ વોશિંગથી તમે સામાન્ય રીતે જો તમારી પાસે આલ્કોહોલિક સેનિટાઈઝર ના હોય, અને જે આલ્કોહોલિક સેનિટાઈઝર છે એમાં મોર દેન 65 to 70% આલ્કોહોલ હોવું જરૂરી છે. એટલે એવું જો સેનિટાઈઝર મળતું હોય તો સેનિટાઈઝર સાથે રાખી શકો છો, અથવા સૌથી સારામાં સારી વસ્તુ સામાન્ય સાબુથી હાથ ધોવો. અને હાથ ધોવાના ઘણા બધા જે એ છે કે ઓછામાં ઓછું 20 થી 40 સેકન્ડ હાથ ધોવાનો છે. હું તેના 6 સ્ટેપ છે. પહેલા સાબુ લગાવીને તમે એકબીજાનો હાથ એ કરી શકો છો, પછી 2 એકબીજાના આંગળી નાખીને કરી શકો છો, પછી એક પાછળના હાથથી કરી શકો છો, એક બીજા હાથથી કરી શકો છો, પછી જે અંગૂઠાને જે છે એ આવી રીતે કરી શકાય છે, આમ કરી શકાય છે, અને આવી રીતે આ જે જુદા જુદા 6 થી 7 સ્ટેપ છે, જે 6 સ્ટેપ આપણે મુખ્ય છે એ 6 સ્ટેપ. અને પછી છેલ્લો સ્ટેપ છે કે તમારું કાંડું જે હોય એ કાંડુને બી તમે સાબુથી વ્યવસ્થિત સાફ કરી, અને 6 સ્ટેપ જે છે એ 6 સ્ટેપથી જો તમે રાખો એટલીસ્ટ 20 થી 40 સેકન્ડ સુધી તમે, એટલે જ્યારે બી તમે બહાર જઈને આવ્યા હો ત્યારે આ વસ્તુ ખાસ કરો. જ્યારે તમે કોઈ અપરિચિત વ્યક્તિને મળતા હો, કોઈ પાર્સલ લેતા હો ત્યારે બી આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. એ પાર્સલ શરૂઆતમાં કોઈ ખુલ્લી જગ્યાએ મૂકવું, જે અને પછી એને બાજુમાંથી તમારે એને લેવું, અને બને શકે તો જ્યારે બી એ વસ્તુનો ઉપયોગ કરો કે પાર્સલનો તરત જ હાથ ધોવા. આ સામાન્ય પ્રકાર, આ આપણે ત્યાં દરેકને ત્યાં સાબુ અને પાણી તો અવેલેબલ હોય છે. તો આ એક તમે નજીવા ખર્ચે બી તમે આનાથી બચી શકો એમ છો. એટલે વારંવાર હાથ ધોવા, માસ્ક પહેરવો અને ફિઝિકલ ડિસ્ટન્સ રાખવું, આ 3 અગત્યની બાબતો છે. જે 3 બાબતોનું જો ધ્યાન રાખવામાં આવે તો તમે આ કેસથી બચી શકો છો. હવે જે આપણે વાત કરી કે મોટાભાગના કેસો જે છે, આપણે જે જોયા માઇલ્ડથી એસિમ્પ્ટોમેટિક છે. માઇલ્ડ કેસમાં આપણે એવું વાત કરી કે જે લોકોને ખાંસી છે, તાવ છે, એ લોકોને હાલની પરિસ્થિતિમાં આપણે એમને દાખલ કરતા નથી, અને એ લોકોને ઘરે જ હોમ આઇસોલેશનની સગવડ, એટલે આપણે જે હોમ આઇસોલેશનની સગવડ જે આપણે નક્કી કરેલી છે એ હોમ આઇસોલેશન એટલા માટે કે જ્યાં એમને અલાયદો રૂમ હોય, અને અલાયદા રૂમ અને અલાયદી એમને ટોયલેટ બાથરૂમની વ્યવસ્થા હોય. એ લોકોને આપણે ત્યાં બીજા ઘરના બીજા સભ્યોથી એ લોકો અલાયદા રહી શકે, અને એ કોમન ટોયલેટ બાથરૂમ ન હોય બધા માટે, તેવા લોકોને આપણે હોમ આઇસોલેશન કરીએ છીએ. બાકીના લોકોને, જે લોકોને આવા માઇલ્ડ સિમ્ટમ્સ છે, એને સરકાર તરફથી અમુક કોમ્યુનિટી હોલમાં બી આની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે કે જે લોકોને ત્યાં સગવડ નથી, કે હોમ આઇસોલેશન થઈ શકે એવી સગવડ નથી, તે લોકોને આપણી સુરત કોર્પોરેશન અને અમુક સામાજિક આગેવાનોએ પોતાની સમાજની વાડીમાં આવા હોમ આઇસોલેશન સેન્ટરો ઊભા કર્યા છે, જેને આપણે કોવિડ કેર આઇસોલેશન સેન્ટર તરીકે ઓળખીએ છીએ. કોવિડ કોમ્યુનિટી આઇસોલેશન સેન્ટર તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. અને જે સુરતમાં લગભગ 6 થી 7 આવા કોમ્યુનિટી કેર સેન્ટરો ઊભા કરવામાં આવેલા છે, અને એમાં દરેક સામાજિક સંસ્થાઓ એમાં, અને સુરત કોર્પોરેશને આમાંનો સિંહ ફાળો રહેલો છે કે જે લોકોએ આ વ્યવસ્થા ઊભી કરી છે. એટલે જ્યાં જે લોકોને આ સગવડ નથી હોમ આઇસોલેશનની, એવા લોકોને આવાને ત્યાં રાખાવે છે. પછી જે પેશન્ટો હોય એ લોકોએ શું વસ્તુ જોવાની, એ લોકોએ 3 વસ્તુ જોવાની ખાસ જરૂર હોય છે.
કે એમનું ટેમ્પરેચર રોજ એમનું ઘરે ટેમ્પરેચરનું માપવાનું હોય છે. જો શરીરનું ટેમ્પરેચર 101 અથવા 102 સેન્ટીગ્રેડ રહેતું હોય તો તાત્કાલિક નજીકના ડૉક્ટર કે પીએસસી કે સીએસસીના જે ડૉક્ટર હોય અથવા કોર્પોરેટ તેમના નજીક જે વિસ્તારમાં રહેતા હોય એ વિસ્તારના નજીકના સરકારી દવાખાના અથવા કોર્પોરેશનના દવાખાનામાં એ લોકોએ જાણ કરવાની હોય છે. અને જ્યારે બી આપણે આવા દર્દીઓને હોમ આઇસોલેશન કરતા હોય છે ત્યારે આપણે એસએમસીને બી જાણ કરતા આવીએ છીએ કે જેથી એસએમસીની ટીમો એમના ઘરે જઈને રોજ 2 વાર આરોગ્ય કર્મચારી જાય છે અને તે લોકોને તાવ છે અથવા એમનું જે આપણા આમાં ઓક્સિજનની ખામી થઈ જાય છે એટલે શ્વાસ ચડવાની ફરિયાદો ઊભી થાય છે. એટલે પેશન્ટો જો થોડુંક બી ચાલે તો શ્વાસ ચડી જાય છે. અને એ જો આપણે પલ્સ ઓક્સિમીટર એ સાદું મશીન છે એ લગભગ 1500 થી 1700 રૂપિયામાં અવેલેબલ હોય છે. એટલે જે લોકો એફોર્ડ કરી શકતા હોય એ લોકો બી આ લઈને ઘરે જેમ આપણે મોબાઈલ વાપરીએ છીએ એવી રીતે આંગળી જે આપણી મોટી આંગળી જે છે એ આંગળી પર એ લગાવી, કેમ કે એ આંગળી સૌથી સારામાં સારી છે કે જેનાથી એ આંગળીમાં પેલું પલ્સ ઓક્સિમીટર ફિટ કરી અને તમે ઓક્સિજનનું પ્રમાણ જાણી શકો છો. નોર્મલી આપણું ઓક્સિજનનું પ્રમાણ 95% વધારે હોય છે. જો એ પ્રમાણ 94% ઓછું અથવા હોય અથવા 90% થી 94 વચ્ચે રહેતું હોય તો એ લોકોએ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. પણ જેવું એ પ્રમાણ 90% થી ઓછું થવાનું થાય અથવા 90, 89, 88 થાય તાત્કાલિક નજીકની સરકારી હોસ્પિટલો અથવા કોર્પોરેશનની હોસ્પિટલમાં જવાનું હોય છે. એટલે જે લોકો હોમ આઇસોલેશનમાં હોય છે તે લોકોએ તાવ આવવો અને ઓક્સિજનનું પ્રમાણ જો જોઈ શકતા હોય ને ઓક્સિજનનું પ્રમાણ 90% થી ઓછું હોય તો તાત્કાલિક હોસ્પિટલ પહોંચવાનું છે. જે લોકો પાસે હોસ્પિટલ જ્યાં ઓક્સિજનનું પ્રમાણ જોઈ શકતા ન હોય તેવા લોકોએ અગર ચાલવાથી શ્વાસ ચડતો હોય અથવા શરીર ભૂરું પડતું એવું લાગતું હોય તો એ લોકોએ તાત્કાલિક 104 જે આપણી સરકારી સેવા છે આરોગ્ય સેતુ છે એ આરોગ્ય સેતુનું તમે એપ જો ડાઉનલોડ કરેલો હોય તો એ તમને બતાવશે કે તમારા વિસ્તારની નજીકમાં ક્યાં સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે ત્યાં તમે કહેવાય. એટલે હાલમાં 3 પ્રકારની આપણે ત્યાં સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. એક કોવિડ કેર સેન્ટર બનાવ્યા છે જેમાં માઇલ્ડથી વેરાયટી વાળાને અથવા એસિમ્પ્ટોમેટિક પેશન્ટને જેને હોમ આઇસોલેશન આપણે કરેલા છે ને એમના ઘરે સગવડ નથી એવાને રાખીએ છીએ. પછી કોવિડ હેલ્થ સેન્ટર બનાવ્યા છે કે ત્યાં ઓક્સિજનની વ્યવસ્થા રાખેલી હોય છે. એટલે જે દર્દીઓને ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઘટતું હોય 90 થી ઓછું રહેતું હોય, જો પલ્સ ઓક્સિમીટર મશીન કહેવાય છે એ મશીનમાં તમે માપો અને એનું પ્રમાણ જો 90% થી ઓછું થતું હોય તો એવા લોકોને આપણે કોવિડ હેલ્થ સેન્ટરમાં દાખલ કરીએ છીએ. અને ત્રીજું છે એ ડેડિકેટેડ કોવિડ હોસ્પિટલ, જ્યાં જે લોકોને જરૂર છે કે ઓક્સિજનનું પ્રમાણ બી ઘટી જાય છે અને એમને વધારે પડતા ઓક્સિજનની જરૂર છે અને જરૂર પડે તો આપણે એને જે વેન્ટિલેટરની સુવિધાઓ જે કહીએ છીએ કે નોન ઇન્વેઝિવ વેન્ટિલેટર કે એવાની જે જરૂર હોય છે તેવા લોકો માટે આપણે જે ક્રિટિકલી ઇલ હોય એવા લોકો માટે સિવિલ હોસ્પિટલ અને કોવિડ હોસ્પિટલ બનાવેલી છે અને સ્મીમેર ખાતે હોસ્પિટલ બનાવી છે. આ સિવાયની જ્યાં જે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલો છે તે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલો જે મહાવીર છે, જેટલી સેલ્બી છે, નિર્મલ હોસ્પિટલ છે, એ લોકોએ બી ટ્રાય-સ્ટાર હોસ્પિટલ છે અને મેટાસ હોસ્પિટલ, આ સર્વે હોસ્પિટલ, કિરણ હોસ્પિટલ વરાછામાં, એ લોકોએ સંસ્થામાં 50% બેડ કોર્પોરેશને નજીવા દરે રાખેલા છે. જેમાં એટલે આવા દર્દીઓને ત્યાં સગવડ આપી શકાય છે. પણ એવા દર્દીઓ એ સગવડ ફક્ત એ લોકો જે દર્દીઓ સિવિલ હોસ્પિટલ અથવા સ્વીમેરમાં આવેલા છે તે લોકોને જરૂર પડે ત્યાં મોકલવામાં આવે છે. તે લોકો ડાયરેક્ટ તે હોસ્પિટલમાં જશે તો ડાયરેક્ટ એમને સરકારથી અથવા કોર્પોરેશને જે રેટ કરેલા છે એ કોટામાં તમને એડમિશન આપવામાં નથી આવતું. એ એડમિશન માટે તમારે સિવિલ હોસ્પિટલ અથવા સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાની જરૂર છે. અને એ લોકોને જરૂર લાગશે તો એ લોકો આવા સેન્ટરો કે આવી બીજી હોસ્પિટલોમાં જ્યાં એ લોકોએ એમના બેડ ખાલી હશે ત્યાં એ લોકોએ ત્યાં ટ્રાન્સફર કરવાની વ્યવસ્થા કરેલી છે. હવે આપણે જે 3 પ્રકાર हम इस जो बीमारी कोरोना बीमारी है उसके 3 प्रकार मिलते हैं, माइल्ड और एसिम्टोमेटिक, मॉडरेट
and severe. So how will you differentiate these three categories? Mild and asymptomatic may be having body ache, fever, malaise, sore throat. These are the symptoms of mild category. અને જે આપણે moderate category जो जिसको हम moderate category बोलते हैं, वो moderate category में उसका ऑक्सीजन का लेवल if it is less than it maintain to 90 less than 94 तो उनको हम moderate category बोलते हैं. If we go for X-ray और HRCT तो उन लोगों को हम देखते हैं, तो उन लोगों में अगर एक्सरे में फाइंडिंग मिलता है वायरल न्यूमोनिया का, और अगर हम उसका HRCT कराते हैं तो HRCT और CT स्कैन जिसको चेस्ट का CT स्कैन बोलते हैं वो HRCT है. तो HRCT अगर कराते हैं उसमें भी कई बार हमको न्यूमोनिया की असर दिखती है, वायरल न्यूमोनिया की. ऐसे लोग है उसका, और जिसका ऑक्सीजन लेवल 94 से कम है, जिसका जो भी है वो 94 से कम है, उनको हम मॉडरेट कैटेगरी बोलते हैं. सो माइल्ड कैटेगरी में उनको वायरल न्यूमोनिया होता नहीं है. तो हम रेडियोलॉजिकली हम एक्सरे या HRCT करते हैं तो उनमें न्यूमोनिया का असर दिखता नहीं है. जब मॉडरेट कैटेगरी और उनका सेचुरेशन जो ऑक्सीजन सेचुरेशन हम जो बोलते हैं, ऑक्सीजन का प्रमाण जो बोलते हैं वो 94 से ज़्यादा रहता है, 94% से ज़्यादा रहता है. जब मॉडरेट कैटेगरी में हम देखते हैं तो मॉडरेट कैटेगरी में ऑक्सीजन का प्रमाण 94 से कम रहता है, और रेडियोलॉजिकल में एक्सरे या HRCT में हम देखते हैं कि उनको न्यूमोनिया का लक्षण मिलते हैं, न्यूमोनिया पाया जाता है, वायरल न्यूमोनिया. और सीवियर कैटेगरी उनको बोलते हैं. सीवियर कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया है सीवियर कैटेगरी विथ रेस्पिरेटरी फेलियर एंड सीवियर कैटेगरी विथ critical patient having septicemia and septic shock, where उनको बाकी के अंग भी इन्वॉल्वमेंट है, जैसे किडनी का अफेक्शन होता है, लीवर का अफेक्शन होता है, ब्रेन में भी कभी हमें पाया जाता है. तो इसको हम माइल्ड मॉडरेट सीवियर कैटेगरी बोलते हैं. और जो सीवियर कैटेगरी में रेस्पिरेटरी फेलियर जो बोलते हैं उसमें फक्त उसमें अगर हम देखेंगे तो वो दिखता है कि उनका ऑक्सीजन का प्रमाण बहुत कम रहता है, लेस देन 80% हो जाता है. तो उनको तुरंत हम ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है. उसमें दो प्रकार का ऑक्सीजन देते हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं और NRBM हम उसको बोलते हैं. और अगर उससे भी ठीक नहीं रहता है तो उनको हम नॉन इन्वेजिव बाईपेप लगाते हैं, और बाईपेप में भी अगर वो नहीं मेंटेन करते हैं तो हम उनको इन्वेजिव वेंटिलेटर पर रखते हैं. तो ऐसे डिवाइड करते हैं. उनका अगर देखें तो उनका ब्लड प्रेशर और बाकी के सब किडनी में कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन सीवियर कैटेगरी विथ क्रिटिकली इल में उनका किडनी अफेक्शन होता है, उनका लीवर का अफेक्शन होता है और ब्रेन का भी अफेक्शन होता है. तो ऐसे हम डिवाइड करते हैं. बेसिकली ये वायरस है अपने शरीर में जो हम AC2 एंजाइम बोलते हैं, वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स AC2 रिसेप्टर अवेलेबल है. वो जो मैक्सिमम ज़्यादातर हमको फेफड़े में मिलते हैं, उसके बाद हार्ट में मिलते हैं, किडनी में मिलते हैं, लीवर में मिलते हैं और ब्रेन में भी पाया जाता है. इसीलिए ये हमारे जो वायरस है, ये वायरस का एक प्रोटीन बोलता है, उसको स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं. वो स्पाइक प्रोटीन ये रिसेप्टर के साथ ज्वाइन एफिलिएट होके अपने शरीर में वो फैलाता है. तो वो अपने शरीर में जहाँ भी AC2 एंजाइम जो बोलते हैं हम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टाइप 2, उसको जो है जो लंग्स में, तो इसलिए हमको ज़्यादातर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन शुरू में हमको ज़्यादातर रेस्पिरेटरी अफेक्शन मिलता है. और धीरे धीरे जैसे वो वायरस सारे शरीर में प्रसरता है तो उसी तरह बाकी किडनी इन्वॉल्वमेंट होता है, लिवर इन्वॉल्वमेंट होता है और ब्रेन भी होता है. दूसरा ऐसा है भी कि ये ब्लड सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, तो उसको जब हाइपर कोएगुलेंट स्टेज बोलता है, जो जिससे हमारे शरीर में जो क्लॉटिंग प्रक्रिया होती है वो क्लॉटिंग प्रक्रिया जल्दी बढ़ जाती है. हाइपर कोएगुलेंट स्टेज में ये क्लॉटिंग प्रक्रिया बढ़ जाती है. तो इसके लिए हम ज़्यादातर जो सीरियस पेशेंट है वो सीरियस पेशेंट में क्लॉटिंग प्रक्रिया हाइपर कोएगुलेंट स्टेज बोलते हैं. इसके लिए हम वो लेबोरेटरी परीक्षण भी करते हैं जिसमें हम देखते हैं, उसको हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर बोलते हैं. तो वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर में हम बोलते हैं
डे डाइमर टेस्ट, सीरम फेरेटिन लेवल, सीआरपी लेवल एंड एलडीएच लेवल, ये अगर ज़्यादा मिलते हैं तो हम उसको हाइपरकोएगुलेबल स्टेज बोल सकते हैं। और ऐसे जिसका ज़्यादा प्रमाण है जिसमें ये लेवल, उस व्यक्ति में मोर्टालिटी होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो उनको हम ट्रीटमेंट देते हैं। तुरंत उनका ऑक्सीजन प्रमाण भी कम हो जाता है, तो शुरू में ऑक्सीजन के देता है, हम उनको पहले ऑक्सीजन देते हैं, फिर हिपेरिन देते हैं एंटीकोएगुलेंट में, और उसको हम लो मोलिकुलर हिपेरिन बोलते हैं। और लो मोलिकुलर हिपेरिन के साथ हम उसको मेनली वो पेशेंट जो होता है उसको स्टीरॉयड देते हैं, क्योंकि ऐसे अक्सर इलाज में जो वो स्टीरॉयड जो देना है वो आइदर मिथाइलप्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन, वो 3 से 5 ही देना होता है, और वो सब जगह अवेलेबल है। तो वो दवाई हम शुरू में करते हैं, फिर 3-4 दिन के बाद इन्फ्लेमेटरी मार्कर कराते हैं। अगर वो रिपोर्ट में हमको कम आते हैं तो हम उसको 5 दिन के बाद स्टीरॉयड बंद करते हैं, और धीरे धीरे उसका ऑक्सीजन का प्रमाण भी घटाते हैं। तो ऐसे पेशेंट काफ़ी स्वस्थ होने का लक्षण हमको मिलते हैं। तो ये 3 वैरायटी है। और उसका पैथोपेथोलॉजी मैंने बताया कि इनिशियली वो AC2 एंजाइम को बाइंड करते हैं, उसके बाद वो बाइंडिंग करने के बाद दे कैन गेट एंट्री इनटू द वेरियस ऑर्गन्स लाइक लंग्स, किडनी, लीवर, उन सब में फैला जाता है। तो वो ऐसे हुआ। ट्रीटमेंट पार्ट है, माइल्ड वैरायटी है तो आप सिंपल एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हो। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगर बुखार आया तो हम सिंपल पैरासीटामोल टैबलेट ले सकते हैं, और सर्दी अगर मालूम पड़ती है तो हम उसको सेट्रिजिन टैबलेट ले सकते हैं। और उसके साथ आप अपने नैसर्गिक उपाय भी कर सकते हो। नाश लेना है, नींबू शरबत पीना है, गर्म पानी में नींबू पीना, क्योंकि विटामिन सी, विटामिन डी उसका भी थोड़ा कुछ रोल पाया गया है। तो ऐसे ही भी विटामिन ले सकते हो आप, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते। बेसिकली हमको इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति जिसको बोल रहे हैं, वो रोग प्रतिकारक शक्ति जिनको को बूस्टअप करना है, तो उसमें आप विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक वो सब दे सकते हो। तो ऐसे आप करना चाहते हो। अब दिस इज द, अब आपको चीज़ क्या करनी, जो मैंने बताया कि आपको मास्क पहनना है, बार बार हाथ धोना है, और जो हाथ के स्टेप मैंने दिखाए थे कि पहले साबुन से वो करके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप, दिस इज थर्ड स्टेप, देन फोर्थ स्टेप, दिस इज फिफ्थ स्टेप, दिस इज सिक्स्थ स्टेप, एंड सेवंथ इज आप वो करो। दिस आर द 7 स्टेप, एंड एटलीस्ट यू हैव टू डू फॉर 20 to 40 सेकंड। तो आप ऐसे हाथ धोना है, सिंपल साबुन जो हमारे घर में अवेलेबल है उससे करना है। और अगर ये अवेलेबल नहीं है, आप बाहर हो, तो बाहर जहाँ आपको साबुन पानी नहीं मिलता है तो आप सैनिटाइज़र, अल्कोहलिक सैनिटाइज़र रख सकते हो। उसमें अल्कोहल की मात्रा 65 to 70% होनी चाहिए। ऐसा अल्कोहलिक सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हो। मेनली आप अगर बीमार हो तो भीड़ भाड़ वाली जगह में मत जाइए, और घर में ही आराम करिए। अगर अपनी ज़िंदगी से कोई भी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इसीलिए जब भी आप बीमार हो तो आप बाहर जाना पसंद नहीं करिए। अगर ज़रूरत है तो ही जाइए, और जाओ तो भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाओ। और मास्क पहनो, मास्क पहनना ज़रूरी है। और उसी लिए अगर आपको घर में रहते हो तो अलग रूम, जो हम उनको होम आइसोलेशन बोलते हैं, जहाँ सेपरेट टॉयलेट बाथरूम है सबके लिए और दूसरे के लिए अलग है, ऐसे रूम में आपको अलग रहना है और किसी के संपर्क में आना नहीं है। और जब किसी के संपर्क में आते हो तो मिनिमम 3 to 5 फुट डिस्टेंस रखना है। तो ये सब बात हुई। अगर अब हमने आधा घंटा तो बोल दिया है, अगर अभी किसी का जो भी, अभी सब लोग बोलते हैं कि मांस मच्छी खाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, ऐसी कोई नहीं है। अगर हम अल्कोहल लेंगे तो भी अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और ये सब चीज़ वो है, इसीलिए ये सब चीज़ पे ध्यान मत रखो, ठीक है। तो आपको साफ सुथरा और स्वच्छता रखना है, उससे सबसे। अब कोरोना ने हमको काफ़ी चीज़ वो करा ली है कि आप अगर जितना भी स्वास्थ्य स्वच्छता रखेंगे, उससे वो गंदगी है तो गंदगी को हटाइए और उसको रखें। अगर जिस घर में वो होम आइसोलेशन हुए हैं वहाँ हम उसको हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो आप हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो हमारे सबको बोरिक पाउडर तो मिलता ही है, तो बोरिक पाउडर का पानी में वो करके
आप उसका हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन बन जाता है, उसमें आप उसके कपड़े, उसकी चद्दर, वो सब वहाँ धोने के लिए डालिए, जिससे उसमें आधा घंटा 1 घंटा रखिए, बाद में दूसरे घर में दूसरे लोग को दीजिए, कि जिससे वो इन्फेक्शन, चेप नहीं फैल सकते। और वही पानी है वो आप टॉयलेट और बाथरूम में धो डाले, तो उससे क्या कि बाथरूम और उससे भी, क्योंकि ये जो होता है वो एयर ड्रॉप को, उसका जो संक्रमित होने का जो है वो एक एयर ड्रॉप बोलते हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होते हैं, और इट ऑल्सो पासिस इन अवर फीसिस, जो हम फीसिस एंड यूरिन। सो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो संडास, सेपरेट संडास क्यों रखना है, सेपरेट टॉयलेट क्यों रखना है, और उसमें हर बार आप यूज़ करने के बाद ये जो मैंने बताया बोरिक पाउडर वाला, वो सॉल्यूशन अगर वो घर में मिलता है या सबके घर में बोरिक पाउडर रहता है, उसका सॉल्यूशन बना के आप आफ्टर यूज ऑफ टॉयलेट यू वॉश दिस टॉयलेट बाय बोरिक पाउडर सॉल्यूशन। तो ये सिंपल है। तो इससे आप हाइपोक्लोराइड और उसी हाइपोक्लोराइड वही बोरिक पाउडर का सॉल्यूशन से आप रूम को साफ कर सकते हो, उसमें पोछा लगा सकते हो, और जो भी आप हैंडल जो है, आप रूम के हैंडल है, वो बार के है, डोरबेल है, या लिफ्ट में जो भी आप यूज़ करते हो, आपका लैपटॉप है या आपका टेबल है, जो चीज़ है वो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन ऐसे बोरिक पाउडर वाला सॉल्यूशन बना के आप यूज़ करते हो, क्योंकि ये चीज़ आपके घर में अवेलेबल है। उसके लिए आपको स्पेशल वो लाने की ज़रूरत नहीं है कि हर बार आपको डेटोल का सॉल्यूशन लाओ, वो लाओ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कि जो अब अपने पास अवेलेबल है वही चीज़ को हम यूज़ करके कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों का जो भी प्रश्न है, और अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं मेहुल भाई, तो उससे हम वो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। पार्टिसिपेंट के बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है सर जिसके ऊपर हम 2-3 घंटे आराम से बात कर सकते हैं। तो आई हैव लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, तो मैं स्टार्टिंग से ले रहा हूँ। सर पहला क्वेश्चन ये है कि अगर नॉर्मल सिचुएशन में कोई भी कोविड पॉजिटिव मालूम हो किसी को भी, पेशेंट को, तो कहाँ पर और कैसे प्रोसीजर करनी है? सिविल में जाना है या कैसे? कोई भी पेशेंट को या घर में किसी को कोविड पॉजिटिव हो तो कहाँ पर जाए या कैसे कांटेक्ट करे किसी को? अभी देखो, उसमें आपको घर में वो पहले डिसाइड कर लेने का है कि अगर कोविड सिम्टम्स, खाली सिम्टम्स आते हैं, या अगर आपने उसकी जांच कराई है और जांच का रिपोर्ट आता है, तो आपको कॉरपोरेशन से फोन आएगा और कॉरपोरेशन वाले आपको बोलेंगे कि आप जांच करने जाओ। अगर आपको सिम्टम्स है, वो खांसी है, आपको गला में खराश है और बुखार है, और ऐसे सिम्टम मिलते हैं, और अगर आपको लगता है कि हमारे पास वाले जो आदमी थे और जो लोग थे उनको पॉजिटिव आया, तो इसके आप परेशान हो तो आप कहीं भी आपके नज़दीक में 104 को फ़ोन कर दीजिए। और अगर आपने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर दिया है, तो वो दिखाएगा आपको कि आपके नज़दीक में कौन सा हेल्थ सेंटर है कि जहाँ जाके आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। और उसमें क्या है कि आप सतर्कता रखना है। ऐसा नहीं है कि सब कोविड वाले पेशेंट को, जो कोविड पॉजिटिव होते हैं, वो सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा डर नहीं रखना है, लेकिन सतर्कता रखना है, जिससे कि हम दूसरे को ये संक्रमित न कर सके और अपने कैसे बचे वही देखना है। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन विपुल भाई मालन की आगा है। ये पूछ रहा है कि अब ये बारिश की मौसम है, तो सर्दी जुकाम तो नॉर्मली सबको देखने को मिलता है, तो ये और कोविड में हम कैसे डिफर कर पाए, कैसे डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पाए? उसमें ऐसा है कि मैंने पहले भी बताया कि अगर सर्दी होता है तो सर्दी के साथ जो आपको नाक से जो थिक प्रवाही निकलता है, वो थिक प्रवाही कोविड पेशेंट में नहीं निकलता है, ठीक है। और जो उसमें वो होता है, तो जो नाक का इन्फेक्शन होता है वो एलर्जिक राइनाइटिस होता है, पानी निकलना नाक से और जाड़ा प्रवाही निकलना, जो हम बोलते हैं सर्दी, वो ऐसा नहीं दिखता है। इसलिए ऐसा हो तो घर में ही नाश लीजिए गर्म पानी का, और नाश लेने के बाद उसका उपचार करिए। अगर थोड़ा बुखार है तो आप सिंपल पैरासीटामोल टैबलेट लीजिए, अगर ज़रूरत पड़ती है तो नज़दीक के डॉक्टर को दिखा के दवाई लीजिए। ऐसे वो सर्दी को आप कर सकते हैं। लेकिन कोविड में है तो कोविड में आपको देखना है कि कोविड होगा तो उसको हाई ग्रेड फीवर होता है, मोर देन 101 और 102। दिस विल डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम
common cold to COVID. ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी गॉट फ्रॉम श्वेता जोशी। ये पूछ रहे हैं कि अगर एजेड पर्सन है, सीनियर सिटीजन, और उनको पॉजिटिव है, तो उनको मोटिवेट कैसे रखें, उन्हें पॉजिटिव थिंग कैसे डालें? मतलब ये काउंसलिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है कि ऐसी कोई फैसिलिटी एसएमसी के द्वारा कुछ अभी देखो अवेलेबल है? हमने वो बात नहीं बोला कि जो पेशेंट है जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन बोलते हैं, जिनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, जिनका एज मोर देन 65 है, और डायबिटीज, हाइपरटेंशन, और किसी को एलर्जिक अस्थमा बोलते हैं, अस्थमेटिक है, या सीओपीडी या कैंसर है, ऐसा कोई भी बीमारी है, तो वो लोग को खास वो जरूरी ध्यान रखना है कि उनका जो रूटीन दवा है, जो रूटीन उनका रोग है, वो रोग को दवाई रेगुलर लेना है। वो दवाई लेने से उनका रोग काबू में रहता है, तो उससे अगर वो उनका रोग अगर काबू में रहता है तो उनको, जैसे कॉमन आदमी है, सामान्य आदमी, और उनको एक ही, जितने लोग को होता है वो एक ही तरीके से होता है। इसलिए जो ऐसा लोग है उनको हम बोलते हैं कि आप अफेक्शन ऑफ दिस डिसीज, अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल है, हाइपरटेंशन कंट्रोल है, अगर हार्ट डिसीज है, हार्ट डिसीज की दवाई रेगुलर लेते हैं, तो उसमें और घबराने की जरूरत नहीं। तो ऐसे आदमी को, ऐसा पाया गया हुआ है कि ऐसे आदमी को, जो कॉमन पब्लिक है, उनको जितना परसेंटेज में कोविड का अफेक्शन होता है उतना परसेंटेज ही होता है। पर जिसका डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, जिसका हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, जिसको अगर वो रूटीन अपनी जो दवाई है वो दवाई नहीं लेंगे और उनका जो रोग है वो रोग काबू में नहीं होगा, तो उसके साथ ये रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए वो खास ध्यान रखना है। और उनको ऐसा है कि ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको अपनी इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए योगासन करना चाहिए, पूरी नींद लेनी चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, और विटामिन सी और विटामिन डी वाले जो है वो लेना चाहिए, जिससे वो होना चाहिए। और थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ऐसी वो करना जरूरी है। क्योंकि वो लोग अगर बूढ़े वर्ग होते, वो अपने से अच्छे जानते हैं कि कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये राजेश्री जोशी बेन का क्वेश्चन, ये पूछ रहे हैं कि कई बार नॉर्मली तो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का कोविड टेस्ट रिपोर्ट हम करवाए, उसका रिपोर्ट आए, उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है और उनमें कोई सिम्टम्स भी देखने को नहीं मिलते। तो ऐसा कुछ होता है सर? ऐसा बहुत वो ऐसे लोग को होता है कि जिस लोगों को ऑक्सीजन का प्रमाण सडनली कम हो जाता है, क्योंकि वो इग्नोर करते हैं। कई बार क्या है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जिसका डायबिटीज अनकंट्रोल है, जिसका प्रेशर कंट्रोल नहीं है, और जिस लोगों को खांसी की बीमारी है या सांस की बीमारी है, वो सांस की बीमारी के लिए अगर जो भी सिम्टम्स होते हैं वो उसको ठीक से वो जान नहीं पाते, ऐसे लोग में होता है। और दूसरा एक ये रीज़न है कि ये पेशेंट को मैंने बताया कि वो हाइपर कोएगुलेशन स्टेज बोलते हैं, उसमें क्लॉटिंग प्रक्रिया जो बोलते हैं, तो क्लॉट शरीर में बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हार्ट अटैक भी हो सकता है, हार्ट का इन्फेक्शन होगा, या मगज में होगा, अगर ब्रेन में होता है तो ब्रेन अटैक बोलते हैं, हम सीवी स्ट्रोक बोलते हैं, तो उसकी भी बीमारी हो सकती है। इसलिए जो यंग पेशेंट है उसमें अगर सडन डेथ होने का कारण ये हाइपर कोएगुलेशन स्टेज की वजह से ही होता है। इसलिए अगर कोई भी सिम्टम्स मिले, पर उन लोगों को पहले सांस बढ़ना, बाकी सब सिम्टम्स होने का होते हैं, और वो अगर इग्नोर करेंगे, पहले थकान महसूस होती है, चलने के बाद सांस कम होने के बाद भी थकान ज़्यादा लगती है और सांस फूलता है, ऐसी चीज को आप इग्नोर मत करिए, तुरंत आप जाके चेक करा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मोहित भाई पूछ रहे हैं कि सर घर में जो नॉर्मल चीजें होती हैं, क्लोथ्स हैं या मेटल्स हैं, उसके ऊपर वायरस कितने टाइम तक टिक सकता है? उसमें वो ऐसा पाया गया है कि वो 3 से 4 घंटे तक रह सकता है। इसीलिए हम उसको डिफरेंट है अकॉर्डिंगली। अगर धूप आती है, तो अगर धूप आती है, तड़के में रखेंगे तो उससे वो हो जाएंगे। अगर ताप आता है तो आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, तो उससे भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये 1 से 2 घंटा रहता है, डिफरेंट वेराइटी। अगर मेटल है तो उसमें 5 घंटे तक रह सकता है, प्लास्टिक है तो 3-4 दिन रह सकता है। ऐसे जो आप बोलते हैं, और कपड़े जो बोलते हैं उसको आप
1 से 2 घंटा तक रहता है, और पेपर जो है उसमें 15 से 20 मिनट तक रह सकता है, वो अलग अलग रहता है। ओके, नेक्स्ट मेटल्स में क्वेश्चन। ज्यादा रहता है। Okay, okay. Thank you, sir. Next question is from Mr. Balaji. He is asking, sir, अभी लोग काढ़े का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, जिसमें जिंजर, हनी, तुलसी, ये सब मतलब ये क्या कोरोना के ऊपर इफेक्टिव है? ये बेसिकली ये सब चीज इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी, इसलिए जो भी चीज इम्यूनिटी बढ़ाती है उनका आप उपयोग करेंगे, क्योंकि ये विषय का इतना मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है, मैं एलोपैथी डॉक्टर हूँ। फिर भी ऐसा पाया गया हुआ है कि जो चीज इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाते हैं, उनका यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी चीज आप लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर करिश्मा बेन का क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि हॉस्पिटल में जो एडमिट पेशेंट है पॉजिटिव या सिम्टोमेटिक, उनकी ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा बताइए, क्या ट्रीटमेंट हम देते हैं? हम वो ट्रीटमेंट जो मैंने ऐसे बताया कि अगर माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक के अंदर हम एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन 500 ओडी देते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं, और अगर न्यूमोनिया मालूम होता है तो हम सेप्ट्राक्जोन इंजेक्शन देते हैं, और जरूरत के हिसाब से उनको फ्लूइड देते हैं, और हम उनका इन्फ्लेमेटरी मार्कर करते हैं। अगर इन्फ्लेमेटरी मार्कर ज़्यादा होता है और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उनको हम स्टीरॉयड देते हैं, और लो मोलिकुलर हिपेरिन देते हैं, जो घटक वो क्लॉटिंग प्रक्रिया कम करने के लिए लो मोलिकुलर हिपेरिन देते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको दूसरे इंजेक्शन भी देते हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योगेंद्र सिंह चौहान। ये पूछ रहे कि 45 डिग्री से ज्यादा तापमान में क्या कोविड लाइव हो सकता है, मतलब उसकी अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वायरस अब नहीं तो आपको बता दूं कि एवरी 4 to 6 ये आपने देखा कि जब ये शुरू हुआ था नवंबर दिसंबर में चाइना में, तब उसका आप देखो तो वहाँ ठंड ज्यादा थी, -डिग्री में तापमान रहता था। पर जैसे जैसे ये आप देखो कि सब कंट्री, ट्रॉपिकल कंट्री में भी होने लगा, जहाँ टेम्परेचर मोर देन 20 डिग्री 30 डिग्री, ह्यूमिडिटी भी बढ़ती थी। अपने यहाँ भी देखो कि मार्च अप्रैल में राजस्थान में 45 डिग्री 40, इवन नॉर्थ में भी 45 डिग्री तक चला जाता है, फिर भी ये वायरस टिक गया। उसका मतलब है कि एवरी 6 to 8 वर्ष उसका म्यूटेशन, जो हमने बोला, उसका म्यूटेशन हो जाता है, उसका आंतरिक फेरफार हो जाता है वायरस स्ट्रक्चर में। और वायरस स्ट्रक्चर है, जिस ऋतु होती है उस ऋतु को एक्लिमेटाइज बोलते हैं हम। वो ऋतु के उसके जो परिबल्स जो बोलते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर है, उनको वो एडेप्ट कर लेता है। तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि अब जहाँ भी ज़्यादा टेम्परेचर है वो कंट्री में भी अभी हमको देखने को मिल रहा है, इसलिए सारे विश्व में वो फैल गया है। इसलिए ऐसा कुछ अभी नहीं है कि टेम्परेचर की वजह से ये कम हो जाएगा। थैंक यू सर। आगे की क्वेश्चनिंग सेशन के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डॉक्टर चिराग सितुरिया सर से। क्वेश्चन लिस्ट बहुत सारे हैं, जो पार्टिसिपेंट है उनमें उत्सुकता भी बहुत है कि ये पूरा सेशन आज का एकदम इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। डॉक्टर चिराग सर से रिक्वेस्ट। हेलो सर, सबसे पहले तो सिविल की आपकी जो भी टीम है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि आप इस समय में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पूरी टीम मिलके बहुत अच्छा काम कर रही है। सर, डॉक्टर जतिन नायक सर का एक क्वेश्चन है कि अभी सीटी स्कैन कराना अच्छा है या कोविड टेस्ट कराना अच्छा है, और उसमें जो 5%, 10%, 25% ये जो परसेंटेज में इन्फेक्शन दिखा रहा है वो क्या होता है? धन्यवाद, आपने जो सिविल का वो सराहना किया। और मैं आपको वो भी बता दूं कि अभी क्या है कि सब इतना टेस्टिंग का लोडिंग हो गया है, तो हम सारे पेशेंट का टेस्ट नहीं कर रहे, इसलिए जो अर्ली सिम्टम्स है उनके लिए सिटी स्कैन में जाता है। सिटी स्कैन का फायदा वो है कि अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, लेकिन हमने अभी तक जो पाया गया है तो उसमें जो 20% से कम वाले हैं, 20-30% तक कम वाले हैं, जो भी परसेंटेज वाले हैं, उनमें इतना ज़्यादातर इतना सीरियस अफेक्शन नहीं मिलता है। और जो 30% से ऊपर होता है उनका कोविड टेस्ट भी पॉजिटिव आता है, और उनको सीवियर कॉम्प्लिकेशन होने का वो भी देखा गया है। इसलिए 5%, 10%, 20% तक आपको कोई चिंता करने का नहीं है, लेकिन सावचेती रखना है
और आपके डॉक्टर को मिलके जो दवाई दे वो दवाई प्रिस्क्राइब करनी है, और आपको देखना है कि आपका टेम्परेचर नहीं आता है, आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन देखना है, और अगर कुछ भी होता है तो इमीडिएटली यू हैव टू कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर। सर एक और क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि बहुत सारे पेशेंट में अभी लक्षण दिखने बंद हो चुके हैं, मतलब लक्षण उसके नहीं दिखते, तो ऐसा क्यों? और अगर जिसमें लक्षण नहीं दिखते उसमें रिस्क लेवल कितना होता है? उसमें दो चीज है, मैंने वो बता दिया कि अपना ए वायरस है जो अफेक्ट करता है जिसका रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, और जो पेशेंट का एज, जैसे एज बढ़ने से रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है, अगर डायबिटीज है और जो क्रोनिक डिसीज बोलते हैं, डायबिटीज है, किडनी डिसीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, ऐसे रोग होता है तो उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है। और जो पेशेंट है जिसे हम वाह वाले पेशेंट है, वो जो पेशेंट को स्टीरॉयड चलती है, बाकी जो पेशेंट है उनको भी कई कई इम्यूनोसप्रेशन चल रहा है, वो का रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने के वजह से उनमें हम पूरा फ्लेयर अप डिसीज नहीं देख सकते। और जो एसिम्प्टोमेटिक, जिसका रोग प्रतिकारक शक्ति ज्यादा है उसको हम एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं, तो वो पेशेंट में इन्फेक्शन होता है फिर भी उसकी इम्यून सिस्टम इतनी बड़ी है, वो इतनी ज्यादा है कि वो ओवरकम हो जाते हैं, तो आपको सिम्टम्स नहीं दिख रहे, इसकी वजह से सिम्टम्स नहीं दिख रहे। लेकिन वही एसिम्प्टोमेटिक इसीलिए हमने अभी देखो एसएमसी ने जो क्लस्टर, जो जहाँ से ज्यादा केस दिखाई देते उसको हम क्लस्टर बोलते हैं, वो क्लस्टर को कम करने के लिए उसको जो क्लस्टर है, तो क्लस्टर में जो भीड़ भाड़ वाली जगह है, एक रूम में 5-6 आदमी रहते हैं तो उनको एक दूसरे से संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है, तो उनको बाहर के एरिया में ना जाए इसके लिए क्लस्टर एरिया मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन ये सिम्टोमेटिक है, वो हमारे लिए रोग फैलाने के लिए जिम्मेदार हम बोल भी सकते हैं, लेकिन इसीलिए जो जरूरी नहीं है, और अगर बाहर जाना है तो उनको मास्क पहनना है, हाथ धोना है और फिजिकल डिस्टेंस 3 to 5 फुट रखना है। यही सतर्कता रख के, वही सावचेती से हम एक दूसरे को संक्रमित कम कर सकेंगे। सर एक और क्वेश्चन था कि न्यूमोनिया और कोरोना में क्या डिफरेंस होता है? नहीं, वो तो कोरोना सेम ही है। इनिशियल फेज में वो माइल्ड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं, तो उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं, जैसे गला में खराश होना, नाक में से पानी निकलना और जो नाक का बंद होना, ऐसे जो बोलते हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है तो उसका इन्फेक्शन होता है, आवाज में खांसी होना, वो सब है। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में उसको बुखार आना, तो उसको न्यूमोनिया के, खांसी आना, वो सब न्यूमोनिया के लक्षण है। तो उसी तरह पहले वो माइल्ड वेराइटी होती है, धीरे धीरे वो बढ़ती है तो अर्ली पल्मोनरी इन्फेक्शन होता है, उसके बाद वो अगर रोग प्रतिकारक कम होता है तो वो लेट पल्मोनरी सिम्टम्स भी हम बोलते हैं, उसमें हाई ग्रेड फीवर होना, सांस फूलना, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होना, ये सब चीज होती है, उसको थोड़ा सीवियर न्यूमोनिया बोलते हैं। सर एक डॉक्टर चेताली जी का एक क्वेश्चन है कि सैनिटाइजर का ज्यादा यूज करने से उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा आगे जाके? नहीं, आप अगर ज्यादा सैनिटाइजर, एक आप चीज करो, जो फीमेल है और जो किचन में काम कर रहे हैं उनको सैनिटाइजर लगा के जाना नहीं है, क्योंकि अल्कोहल वो कहीं से भी गैस पकड़ लेता है, फायर होने का चांसेस हो जाता है। और कई लोगों में ऐसा भी पाया गया है कि बार बार आप अल्कोहल सैनिटाइजर लगाएंगे तो किसी को स्किन एलर्जी भी हो सकती है, तो वो दो चीज है। इसलिए हम तो सबको वही बोलते हैं कि जहाँ भी अगर है तो साबुन से हाथ धोना सबसे वो सस्ता भी है और वही चीज करनी है। अगर जहाँ कुछ अवेलेबल नहीं है वहाँ करना है, लेकिन किचन में तो एटलीस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो अगर आपने तुरंत लगा के, अगर 5-10 मिनट हाथ सूखना जरूरी है, बाद में आप वो करो, क्योंकि ये सब चीज से आपको तुरंत बंद, क्योंकि फायर अगर लग जाएगा तो आपको स्किन बर्न होने की संभावना बढ़ जाती है। सर एक और क्वेश्चन था कि मतलब ये तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, फिर भी कि मतलब कब तक ये कोरोना से पूरा भारत और पूरा विश्व मुक्त हो पाएगा? अगर मान लीजिए वैक्सीन भी मिल जाता है तो कितने टाइम में ये पूरा मतलब डिसीज खत्म हो सकता है? उसमें ये तो अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि आप देखो जहाँ यूएस, चाइना में भी अभी ऐसी रिपोर्टें आ रही है कि वहाँ भी सेकंड पीक चल रहा है, इवन रशिया में भी सेकंड पीक चल रही है।
तो वो कब होगा खत्म, क्योंकि ये उसका मेन प्रॉब्लम है कि एवरी 4 to 6 8 वीक्स में वो वायरस पूरा चेंज हो जाता है। तो उसकी वजह से प्रिडिक्ट करना बहुत वो है, लेकिन उसका एक फायदा है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक बार हो जाएंगे सबसे, तो इम्यूनिटी अपना वो जो हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, तो हर्ड इम्यूनिटी से थोड़ा वो मिल जाता है। लेकिन अब तो ये सब अभी वो सब प्रायोगिक है कि ये इम्यूनिटी भी की सब में हर एक आदमी में जो कोरोना से पीड़ित होके अच्छे हो रहे हैं उनमें भी अगर हम एंटीबॉडी देखते हैं तो वो डिफरेंट उसमें मिल रही है। तो अभी बोलना इतना वो नहीं है कि अगर वैक्सीन बनेगा तो वैक्सीन कितना इम्प्रूव होगा, और अगर वैक्सीन बनेगा तो ये 6-8 महीने के लिए उसकी इफेक्टिव रहेगी। एवरी 6 to 8 मंथ आपको रिपीट लेना पड़ेगा। इसलिए आपको कोरोना के साथ ही जीने की आदत डालनी पड़ेगी, और धीरे धीरे ये मास्क पहनने का और सोशल डिस्टेंस मीन्स फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस तो नहीं बोल सकते लेकिन फिजिकल डिस्टेंस इज इम्पोर्टेंट, आप वो करना है। वो जो धीरे धीरे करेंगे तो उससे थोड़ा कम हो जाएगा। और जहाँ आपने देखा होगा कि बॉम्बे, कलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत, जहाँ जहाँ भी भीड़ वाली जगह है और जहाँ भी थिकन पॉपुलेशन है वहाँ आप देखें तो केस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा वो ध्यान रखेंगे तो मुंबई में अभी कम हो रहे हैं, दिल्ली में कम हो रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा वो हो जाएगा, तो रूटीन सेट होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। मेहुल सर, कोई क्वेश्चन है? हाँ हाँ, मेरे पास तो बहुत लंबी लिस्ट है सर, पार्टिसिपेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। अप टू 12:25 विल कंटिन्यू। सर, एक क्वेश्चन हेमल शाह का ऐसा पूछ रहे हैं कि जो पेशेंट ठीक हो चुके हैं हॉस्पिटल से, मतलब जो पॉजिटिव थे और नेगेटिव हो चुके हैं, उनको घर पर क्या केयर रखनी है, कितने दिन आइसोलेट रहना है, और उसके बाद उनको पॉजिटिव ना हो जाए फिर से उनके लिए क्या केयर करनी है? अभी देखो, अभी पहले ऐसा था कि हम होम क्वारंटाइन पहले हॉस्पिटल में 14 दिन रखते थे, बाद में 14 दिन होम क्वारंटाइन करते थे, तो 28 दिन का होता था। अब धीरे धीरे जो भी वैज्ञानिक तारण आए हैं, ICMR ने उसकी स्टडी की है, वो बताते हैं कि इनिशियल 10 days इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अभी 10 दिन तक हम हॉस्पिटल में रखते हैं, 10 से कम भी रखते हैं अगर पेशेंट का वो हो जाता है तो, और उसके बाद 7 दिन हम होम आइसोलेशन करते हैं। तो मैक्सिमम 17 दिन तक करते हैं, और 17 दिन के बाद अगर वो घर से काम करना है तो घर से काम कर सकते हैं, और ऑफिस जाना है तो वो, और ऑफिस जाए तो मास्क पहनना जरूरी है, फिजिकल डिस्टेंस रखना जरूरी है, और बार बार हाथों साबुन से हाथ धोना जरूरी है, आज सैनिटाइजर यूज करना जरूरी है। और व्हेन यू आर कीपिंग डिस्टेंस, अगर आप कोई भी चीज है तो हैंड ग्लोव्स पहनना भी जरूरी है। तो सर, एक निकिशा पानवाला मैडम पूछ रहे हैं कि ये प्लाज्मा थेरेपी कैसे यूज हो सकती है और कितनी इम्पैक्टफुल है प्लाज्मा थेरेपी? और वो अभी जो भी दवाई हम यूज कर रहे हैं सब एम्पेरिकल ट्रीटमेंट है। अभी उसके सब ऑब्जर्वेशनल स्टडी हो चुके हैं। उसमें कहीं में आज आपने टाइम्स में देखा होगा कि एक न्यूयॉर्क टाइम्स का एक वो आर्टिकल आया, उसमें उन्होंने बताया है कि अभी तक 3 चीज में आपको वो मिल रहा है, रेमडेसिविर, फिर स्टीरॉइड और वही चीज, और प्रोन पोजीशन। हम उसको जो ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को ऊंधा सुला के देते हैं ऑक्सीजन, हम नॉर्मली सीधा सो के ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ऐसे ही हम वेंटिलेशन करते हैं। तो ये 3 चीज में काफी वो मिला हुआ है। बाकी सब चीज जो है उसमें जब मिक्स वो है हम जो, तो बाकी सब चीज में मिक्स है। ऐसे प्लाज्मा में भी उन्होंने बताया है कि वो भी वो है। इसलिए जो आदमी उसका एक इसके पास उसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन वो है कि जो पेशेंट एक बार कोरोना से पीड़ित है और अच्छा हो जाता है, तो वो जो पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद 28 डेज होने के बाद उसमें एंटीबॉडी जो होती है वो एंटीबॉडी ज़्यादा होती है। तो वही अगर एंटीबॉडी को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लाज्मा के उसमें 200-300 ml में, तो वही हम जो सीवियर पेशेंट है उसको दे सकते हैं, अगर मॉडरेट टू सीवियर। अभी तक ऐसा माना गया कि अब मॉडरेट केस में हम देते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा मिल सकता है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एम्पेरिकल ट्रीटमेंट एंड ऑफ लेबल ट्रीटमेंट। सो उसका भी अभी तक जो भी डिसीज आया है वो सब इंट्रीम वो है, क्योंकि हमारी हॉस्पिटल में प्लाज्मा भी दे रहे हैं हम,
बाकी सारी जो नई नई दवाई है, टोसिलुमेब भी दे रहे हैं, रेमडेसिविर भी दे रहे हो, और उसका जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है वो भी हम कर रहे हैं। तो अभी हमको 6 महीने के बाद उसमें पता चलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रायल है रैंडमाइज कंट्रोल, तो उससे हमको ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वैक्सीन के रिगार्डिंग है। न्यूज में अभी आ रहा है कि आईसीएमआर वैक्सीन के उसमें पॉजिटिवली काम कर रही है, रिजल्ट भी आ जाएगा, बट एक्चुअली वैक्सीन सर क्या करते हैं, मतलब ये वैक्सीन भी यही, वैक्सीन बेसिकली वैक्सीन क्या होती है, वो भी ऐसे ही है कि जैसे वायरस अपने शरीर में एंटीबॉडी देते हैं, उसी तरह ये वैक्सीन जो है उसमें इनएक्टिवेटेड कर देते हैं हम वायरस को। जो वायरस है, जो इसका एंटीजन है, उसको इनएक्टिवेट करता है, इसलिए वो फुल फ्लोन डिसीज नहीं करता है, लेकिन वो शरीर में इम्यूनिटी बढ़ा देता है, शरीर में एंटीबॉडी प्रोडक्शन बढ़ा देता है। वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन अगर बढ़ जाएगा तो उससे आपको रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, जिससे ये वायरस दोबारा होने की संभावना कम हो जाएगी। पर ये वो अभी सब एक्सपेरिमेंटल बेस है, और कब होगा कैसे होगा भी विश के जल्दी हो जाए अच्छा है, पर इट टेक्स एटलीस्ट 6 to 1 year। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन योगेंद्र सिंह चौहान की तरफ से पूछ रहे हैं कि नॉर्मल मास्क और N95 मास्क, ये दोनों में गैप क्या है और कौन सा इफेक्टिव है? अभी देखो, हॉस्पिटल में जो काम करते हैं उनको ही N95 यूज करना है, बाकी सब पेशेंट को सिंपल मास्क ही यूज करना है। अगर हमको ट्रिपल लेयर मास्क बोलते हैं, और कॉटन का मास्क भी यूज करना है, और यू हैव टू कीप द डिस्टेंस बिटवीन 3 to 5 फिजिकल डिस्टेंस। बाकी अगर आप हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ अगर करना है 1-to-1 कन्वर्सेशन तभी होता है, क्योंकि N95 मास्क का फायदा वो है कि वो जो भी है पूरा नाक से अपना मुंह का पूरा वो ढक जाता है। तो अगर आपको आपका सांस लेने में और सांस निकालने में डायरेक्ट इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब आप किसी पेशेंट को देखते हैं तब N95 यूज करो या फेस शील्ड लगाओ, लेकिन बाकी सब लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। सिंपल मास्क इज इजी, एंड उसको 2 कॉटन वाले मास्क यूज लो, क्योंकि अब अपना हॉट ह्यूमिड है, अभी देखो कि बारिश आने के बाद पूरा वो तो पसीना भी हो जाता है और ऑक्सीजनेशन भी ले सकते हो। कई बार ये भी जरूरी है कि N95 से भी किसी को एलर्जी होती है तो सर्दी होने की संभावना हो जाती है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन उष्मा मैडम की तरफ से। उष्मा साहब पूछ रहे हैं कि जो छोटे बच्चे 5 साल से कम और जो एजेड है 60 से ऊपर, एंड थर्ड जो प्रेग्नेंट है, उनको हम नहीं काढ़ा दे सकते हैं, नहीं कोई आयुर्वेदिक, तो उनको कैसे प्रिकॉशन दे जिनसे उनका सबसे ज्यादा आप प्रिकॉशन तो वही रखना है कि जैसे फिजिकल डिस्टेंस रखो, मास्क पहनाओ, अगर बीमार होते तुरंत डॉक्टर की सलाह के अनुसार उनको जो दवाई देती है पैरासीटामोल या जो भी हम दे पाते हैं वो देनी चाहिए। छोटे बच्चे को भी थोड़ा वही कि साफ सुथरा रखे, स्वच्छता रखे, और जब उसको भी ये ध्यान रखे, और जो बुजुर्ग लोग हैं उसका भी जो 65 ईयर्स है उनका भी ये ध्यान रखो। अगर वो कोमॉर्बिड जिसको हाइपरटेंशन डायबिटीज है तो उसकी दवाई रेगुलर ले, और ये सब रोग है वो कंट्रोल में रखे, वही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग फ्रॉम मिस्टर बालाजी, इज आस्किंग सर वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, तो इसके रिगार्डिंग क्या कहेंगे आप? अब कौन सी मेडिकेशन ले रहे हो उसके पर डिपेंड रहता है। अगर हम जो भी, अब देखो एलोपैथी में तो कोई भी, एलोपैथी का एक फायदा वही है कि वो जो आप दवाई लेते हो, दवाई के लिटरेचर में आपको क्या क्या साइड इफेक्ट होता है उसका वो दे देते। आयुर्वेदिक और उसमें आपको वो पता नहीं होता है कि उसकी क्या होगा नहीं, इसीलिए कोई भी दवा का उपयोग होता है। अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो उससे ईसीजी में प्रॉब्लम हो सकता है, जो हाइपरटेंशन या हार्ट डिसीज है उनका QTc प्रोलोंगेशन हो सकता है, तो ऐसे दर्दियों में वो नहीं देना होता है या हम बंद कर देते हैं, तो उसका रेगुलर चेकअप करने से ही पता चलता है। इसलिए इवन कोई भी दवा का तो साइड इफेक्ट रहता है, तो आप जुडिशियसली यूज करना है और कैसे भी उसको वो देखना है कि उससे हमें फ़ायदा क्या मिल रहा है। जब हम उसकी साइड इफेक्ट देखते हैं तो पहले ये सोचते हैं कि ये दवा देने से पेशेंट को कितना फ़ायदा हो रहा है, और फ़ायदा और नुकसान दोनों को हम देखते हैं। अगर फ़ायदा ज़्यादा लग रहा है तो हम उसको देते हैं, उसके साथ थोड़ा जो कि भी साइड इफेक्ट होगी उसको हम उसको बताते हैं, और उसको कैसे कंट्रोल करना है वो भी बताते हैं।
सर नेक्स्ट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। रिस्क बेनिफिट रेशियो, जो उसको हम रिस्क बेनिफिट रेशियो बोलते हैं कि कोई भी दवाई से उसका रिस्क क्या है और बेनिफिट क्या है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीम के रिगार्डिंग कि हम गर्म पानी तो पी के तो एक तो थ्रोट जो है हमारा वो तो क्लीन हो जाता है वायरस से, बट जो नोजल है हमारा उसको स्टीम कैसे और कितने टाइम पर हमें लेने चाहिए? वो नहीं, स्टीम तो आप जितना सहन कर पाते हो इतना ले सकते हो। और अभी देखो इतना हॉट ह्यूमिड है तो आप वार्म वार्म वाटर यूज करिए। इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि जैसे आपको और आपकी चमड़ी को वो हो जाए, छाला नहीं पड़ना चाहिए, वो ध्यान रखना है। बाकी उसकी वजह से आपको फिर सिम्टम्स होंगे और दिक्कत बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर धन्वंतरी रथ के रिगार्डिंग। बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं सर, और धन्वंतरी रथ लगभग एक आध वीक में हर एक सोसाइटी में घूम भी रहा है, तो इनमें क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है? वो हमें पता, धन्वंतर रथ मिलते हैं कि धन्वंतरी रस बोल रहे हैं? धन्वंतरी रथ सर, ये जो वो सोसाइटी में आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, हाँ हाँ। इसलिए उसमें क्या क्या है वो तो सब जो इम्यूनिटी रोग प्रतिकारक बढ़ाने की चीज होती है वो ओके ओके अपने आयुष मंत्रालय ने भी थोड़ा प्रमोट किया हुआ है, तो वो लोग ज्यादा बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। सर एक हमारे यहाँ सिविल और स्मीमेर यहाँ की अभी जो फैसिलिटी है, मतलब उनके रिगार्डिंग थोड़ा बताइए। जैसे आपने बताया कि प्राइवेट में जो 50% बेड अलोकेट है, तो अगर किसी को प्राइवेट में वो 50% कोटा में एडमिट होना है तो उसमें क्या प्रोसीजर होंगी, वो थोड़ा गाइडेंस। उनको अगर अगर पहले अभी देख लो कि आपको पहले जाना है सिविल में और स्वीमेर में, वो जो 50% जो बेड वो रखे हैं वो पेशेंट डायरेक्ट सिविल से या स्वीमेर से उनको भेजा जाएगा। उनको हम देखेंगे कि भाई कौन से पेशेंट को कहाँ भेज सकते हैं और कहाँ वहाँ हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी है, उसके ऊपर तय होता है कि हम सारे। इसलिए जो भी पेशेंट होते हैं, क्योंकि हमारे पास हर रोज पेशेंट जो आते हैं तो हमारी हॉस्पिटल भी भर जाती है, तो हम उसमें से डिसाइड कर रहे, तो उनको जो पेशेंट है उसको डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को वहाँ बाहर भेज सकते हो, किस पेशेंट को हम कोविड केयर सेंटर में भेज सकते हैं। माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक रूम एयर पे है, जिसको ऑक्सीजन जरूरत नहीं है उसको हम कोविड केयर सेंटर भेजते हैं, और जो उसको ऑक्सीजन की जरूरत है और उसको अगर वहाँ बेड खाली है तो हम एसएमसी के साथ वो करके हम ये सब चीज करते हैं। तो ऐसे पेशेंट को डायरेक्टली जाने से बेड नहीं मिलेगा, उनको पहले स्वीमेर जाना पड़ेगा या सिविल में आना पड़ेगा, और सिविल के डॉक्टर उसको बताएंगे और दूसरे दिन शिफ्ट करेंगे। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपने बोरिक पाउडर का सॉल्यूशन बताया उसके रिगार्डिंग, मतलब ये बनाए कैसे, उसकी थोड़ी जानकारी दें। उसमें उसमें ऐसा है कि आप 1 लीटर पानी में 2 चम्मच डाल दीजिए या 1 चम्मच डाल दीजिए, वो सिंपल ही है, उसमें वो ज्यादा नहीं करना है। ओके ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी एसएमसी या पूरा सिविल, मतलब ये टेस्ट कम करने के लिए, कोविड को रिकवर करने के लिए अभी कौन से एक्शन में है? वो कोविड कम कर, इसलिए अभी जो जो एरिया से ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं वो एरिया में वो लोग काम कर रहे हैं, तो वो एरिया में से फाइंड आउट कर रहे हैं कि कैसे कैसे जो क्लस्टर जोन है उसको माइक्रो क्लस्टर में कन्वर्ट करते हैं, और माइक्रो क्लस्टर में से उनको समझा रहे हैं कि आप बाहर मत जाइए और उनका प्रिकॉशन रखिए। अगर प्रिकॉशन रखने से ये ट्रांसमिशन जो है वो ट्रांसमिशन ब्रेक करना है। अभी अभी इम्पोर्टेंट चीज ये है हमारे लिए, ये जो केस बढ़ते जा रहे हैं वो बेस केस को कैसे बढ़ते, एक आदमी 60 आदमी को संक्रमित कर सकता है, इसलिए वो जो आदमी हम उसको डिसाइड करें और उसको आइसोलेट करें और उसको बोले जैसे उसका ट्रांसमिशन साइकिल है वो हमको ब्रेक करने की जरूरत है। वो अगर ब्रेक हो जाएगी तो केस आने का कम हो जाएगा और धीरे धीरे हम और लोगों की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ेगी, तो उससे थोड़ा फायदा होने का फायदा है, तो केस भी कम होगा और हमारी रूटीन लाइफ भी शुरू हो जाएगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम संजय सर। ही इज आस्किंग कि अगर किसी को कोविड पॉजिटिव है और अगर रेड सेल काउंट 18,000 से कम है तो क्या करें? रेड सेल 18,000 से नहीं, प्लेटलेट काउंट हम बोलते हैं। अगर प्लेटलेट कम होते हैं तो उनके लिए वो देखना है। बेसिकली ये जो कोरोना वायरस है वो सब आरएनए वायरस है, ये आरएनए वायरस है, डेंगू भी आरएनए वायरस है, और अब जैसे मानसून आएगा तो मलेरिया भी आएगा,
डेंगू भी आएगा। तो उसीलिए आपको उसका इन्वेस्टिगेशन करना है। और अगर ब्लीडिंग नहीं होता है पेशेंट को कोई ब्लीडिंग नहीं है तो आपको कुछ करना नहीं है। अगर ब्लीडिंग है तो आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत होती है, अगर ब्लीडिंग नहीं है तो कुछ नहीं करना। अगर कई बार क्या है कि हम जो दवाई दे रहे हैं, इम्यूनोसप्रेशन दवाई दे रहे हैं टोसिलिज़मेब, उसकी वजह से भी ये काउंट कई बार कम हो जाते हैं, तो उससे इन्फेक्शन की होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे पेशेंट को हमको इन्वेस्टिगेट करने होते हैं और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करनी होती है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पेशेंट है वो अलोन वहां पर एडमिट होता है, तो उनके रिलेटिव को कैसे, मतलब कुछ काउंसलिंग दी जाती है या उनके रिलेटिव में से कोई एक वहां पर रुक सकता है सिविल हॉस्पिटल या सिमेर में? अभी वो भी हम कर रहे हैं उसके लिए भी, लेकिन हमने हेल्प डेस्क बनाया है, कंट्रोल रूम बनाया है, उससे हम उसको जानकारी भी देते हैं और काउंसलर भी रखे हुए हैं जो अगर पेशेंट के बारे में पूछते हैं तो वो पेशेंट के बारे में बताएंगे। सुबह में जब डॉक्टर्स के राउंड हो जाते हैं तब उनको क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में वो कर रहे हैं। वो सब अभी सेटअप हो रहा है, तो उससे भी थोड़ा वो एंजाइटी कम होगी पेशेंट में और पेशेंट रिलेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बोला प्रसाद सर, ही इज आस्किंग कि कोरोना से मतलब डेथ तो हो रही है जो भी पेशेंट है जिनको सीवियर प्रॉब्लम है, तो कौन से बॉडी के कौन से पार्ट के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट करता है जिनसे डेथ हो जाती है? नहीं, उसमें मैंने बताया ना कि जो 2-3 चीज है कि अगर लंग्स में प्रॉब्लम होता है, फिर हाइपरकोगुलेटेड स्टेज हो जाता है, उसकी वजह से दूसरे ऑर्गन में भी फिर वो प्रेशर जाता है, तो उसकी वजह से डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। और उसके साथ में अगर कोमोर्बिड कंडीशन है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, एज मोर है, ओबेज है, जो उसका वजन ज्यादा है, इन लोगों को संभावना बढ़ती है। इसलिए इस लोगों को अगर वेंटिलेटर पर रखते हैं तो उनको रिकवर होने में भी टाइम लगता है। हमारे यहाँ से हमने एक पेशेंट को 48 दिन के बाद डिस्चार्ज किया है। इसलिए ऐसे लोग को वो बढ़ जाता है, दिन हॉस्पिटल में रखने का दिन बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कालू भाई की तरफ से, क्या टर्मरिक यूजफुल है? हल्दी क्या? हल्दी बेसिकली टर्मिक जो हम बोलते हैं, हल्दी बोलते हैं, वो रेस्पिरेटरी इम्यून सिस्टम बढ़ाती है, इसलिए हल्दी का रोल है। इसलिए हल्दी आप लेंगे तो ऐसे भी हम कई सालों से लेते हैं, तो हल्दी तो रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो अगर रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी जो भी चीज़ बढ़ाती है, आप हल्दी देखो, अदरक बोलो, ये सब चीज़ रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो ऐसी चीज़ लेने से तो फायदा ही करेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे क्वेश्चन